بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. قومی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کو ان کے ملک میں حالیہ سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے کینیڈا کی سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہی ہیں. حمد میڈیکل کارپوریشن نے آن لائن اپوائنٹمنٹ ریفرل سسٹم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے خصوصی نگہداشت کے لیے پرائیویٹ کلینک سے ریفر کیے جانے والے مریضوں کو اپوائنٹمنٹس حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. اور ایران کے صدر نے کہا ہے کہ پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کے حق سے ایران کو کوئی محروم نہیں کر سکتا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں ان کے ملک میں حالیہ سیلابوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں. دنی اسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے ملک کے اندر سیلابوں سے ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے. آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کینیڈا کی سفیر اسٹیفنی میکلم نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہی ہیں. بات چیت کے دوران صاحب اسم امیر نے کینیڈا کی سفیر کے لیے ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کینیڈا کی سفیر نے ان کے قطر میں قیام کے دوران حکومتی اداروں کی جانب سے تعاون کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا، جس کی بدولت انہیں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھانے میں مدد حاصل ہوئی. بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی کینیڈا کی سفیر اسٹیفنی میکلم نے ملاقات کی، جس کے دوران وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ان کی مستقبل کی سفارتی ذمہ داری میں کامیابی اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کی مشرقی افریقی تعاون اور خارجہ امور کی وزارت کی ڈپٹی پرماننٹ سیکریٹری فاطمہ محمد رجب نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. قطر کے انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کی صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے دوران انسانی حقوق کے تحفظ کے معاملے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داریوں سے متعلق اگلے ماہ ستمبر کی 12 اور 13 تاریخ کو ہونے والا پہلا قومی فورم برائے انسانی حقوق انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا اہتمام فیفا ورلڈ کپ 2022 کی پریپریشنز کے ضمن میں کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ ایک ہسٹورک ایونٹ ہے اور یہ مشرق وسطی اور عرب خطے میں ہونے والا پہلا بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ ہے. قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD نے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن EAA اور اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق تنظیم یونیسکو کے ساتھ ایک سہ فریقی شراکت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن سمٹ TES کو سپورٹ کرنا ہے، جو اگلے ماہ ستمبر کی 16 سے 19 تاریخ کے درمیان نیو یارک میں منعقد ہوگی. QFFD اور EAA نے اجتماعی طور پر اس مقصد کے لیے $1.6 ملین دینے کا عہد کیا ہے. یہ سربراہی اجلاس اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے تعلیم کے عالمی بحران سے نمٹنے کی غرض سے بلایا ہے، جو عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوا،
जिसके दुनिया भर के बच्चों और नौजवानों के मुस्तकबिल पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन HMC ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रेफरल सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में खुसूसी निगहदाश्त के लिए प्राइवेट क्लिनिक से रेफर किए जाने वाले मरीजों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन जमा करवाने में आसानी होगी। HMC के डिप्टी चीफ ऑफ क्वालिटी नासिर अल नोईमी का कहना है कि इस सिस्टम से मरीजों को कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपॉइंटमेंट के लिए दरखास्त देकर खुसूसी निगहदाश्त की सर्विसेज हासिल करने में आसानी हो जाएगी। दरियासना उम्सलाल हेल्थ सेंटर ने पेट्रियाटिक क्लिनिक समेत तमाम अर्जेंट केयर सर्विसेज को एक्सटेंड करने का ऐलान किया है। ये सर्विसेज हफ्ते के तमाम दिनों में 24 घंटे दस्तयाब होंगी और हर तरह के मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिनमें हाई फीवर, वॉमिटिंग, हल्के और दरमियाने दर्जे के अस्थमा के मरीज, स्किन रैशेज, आंख और कान की तकलीफ में मुब्तला मरीज शामिल हैं। यह खबरें रेडियो कतर से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क के अंदर मानसून बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए दूर दराज इलाकों में इमदादी यूनिट्स डिप्लॉय करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद 1000 से तजावुज कर गई है, जबकि मजमूई तौर पर 33 मिलियन से ज्यादा लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने गांव और घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत से मुतासर अफराद के पास खाने पीने की अशिया, मेडिकल सप्लाईज और सर छुपाने के लिए महफूज जगह नहीं है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने अपने मुल्क के लिए पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के हसूल के मामले में ईरान के हक पर जोर देते हुए कहा है कि इस हक से उन्हें कोई महरूम नहीं कर सकता। ईरान की खबर एजेंसी इरमा की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर रईसी ने कहा कि जौहरी सनत ईरान के लिए जरूरी है, जिसे ज़राअत, तेल, गैस, अद्वियात और दीगर कई शोबों में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि जौहरी सलाहियत रखना ईरानी कौम का हक है और हम कई बार कह चुके हैं कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने का कोई इरादा नहीं रखता। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देना तेहरान की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके लिए बातचीत जारी रखना जरूरी है। सदर रईसी ने ईरान पर आयद पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और दीगर मसाइल को हल करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के बारे में मुज़ाकरात को तर्क नहीं किया। स्लोवाकिया की वजारत दाखिला ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के फौजी हमले के आगाज के बाद से स्लोवाकिया ने यूक्रेन से आने वाले तकरीबन 7,50,000 रेफ्यूजीज को मुल्क में पनाह दी है। आज सुबह एक बयान में वजारत दाखिला ने कहा कि कल इतवार के रोज यूक्रेन से तकरीबन 3,045 पनाह गजीन मुल्क में दाखिल हुए, जिनमें 687 बच्चे शामिल हैं। स्लोवाकिया, जिसकी अपनी आबादी 5.5 मिलियन है, यूरोपीय यूनियन का वो मेंबर मुल्क है जिसने यूक्रेन के सबसे ज्यादा तारकिन वतन को पनाह दी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल रफाइल मरियोना ग्रोसी ने कहा है कि IAEA का सपोर्ट एंड असिस्टेंस मिशन यूक्रेन में ज़पोरियशिया पावर प्लांट पहुंच रहा है, जिस पर हालिया दिनों में गोलाबारी की गई थी। आज सुबह एक बयान में ग्रोसी ने कहा कि हमें यूक्रेन और यूरोप की सबसे बड़ी जौहरी तनसीब की हिफाजत करनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गोलाबारी से इस प्लांट को जौहरी हादसे का खतरा लाहक हो सकता है। और अब कुछ इक्तिसादी और तिजारती खबरें। कतर स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में आज सुबह ट्रेडिंग सेशन के आगाज में 53.97 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि जनरल इंडेक्स 0.39% बढ़कर 13,739 पॉइंट्स तक पहुंच गया। सनती शोबे, बैंकिंग, मालियाती सर्विसेज, अशियाए सर्फ और रियल एस्टेट की कारकर्दगी में बेहतरी की वजह से कतरी स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह 10 बजे ट्रेडिंग वैल्यू 45.98 मिलियन शेयर्स तकसीम किए गए और 2,154 डील्स की गईं। कतर शेयर मार्केट में 0.43% की कमी देखने में आई है। आज के कारोबार में 19 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा हुआ, 22 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई और 4 कंपनियों के हिस्से की मालियत
हस्ब साबिक रही। आज तेल की कीमत में 1% का इजाफा हुआ है, जिसकी एक वजह ये तवक्कुआत हैं कि ओपेक कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए अपनी पैदावार में कमी करेगी। दूसरी वजह यूरोप में गैस की तलब में इजाफा और अमरीकी शरह नमू की तवक्कुआत में कदर कमी बयान की गई है। आज डॉलर की कीमत में दूसरी बड़ी करेंसियों के मुकाबले में गुज़श्ता 20 बरसों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा हुआ है और इसकी वजह अमरीकी फेडरल रिजर्व काउंसिल के सदर जेरोम पावल का यह बयान है कि सूद की शरह बदस्तूर बुलंद रखी जाएगी ताकि मुल्क में बढ़ती हुई कसाद बाजारी को कंट्रोल किया जा सके। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार तो सुन लीजिए। साहिब मुआमीर ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम को उनके मुल्क में हालिया सैलाबों में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। आज सुबह दीवान अमीरी में साहिब मुआमीर से कनाडा की सफीर ने मुलाकात की, जो कतर में अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर अनकरीब वतन वापस जा रही हैं। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रेफरल सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे खुसूसी निगहदाश्त के लिए प्राइवेट क्लिनिक से रेफर किए जाने वाले मरीजों को अपॉइंटमेंट्स हासिल करने में आसानी होगी। और ईरान के सदर ने कहा है कि पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के असूल के हक से ईरान को कोई महरूम नहीं कर सकता। रेडियो कतर से खबरों का आज का दूसरा बुलेटिन खत्म हुआ। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।